Hello my dear students, we are going to start exercise 2.4 today. I am very sure you might have completed exercise 2.2. Now let us see the first question of exercise 2.4. Amina thinks of a number and subtracts 5 by 2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? So these are the question in which we will get algebraic expression on the both side of is equals to. So here is the solution. Let us see what we are going to do. Let the number be x. So first of all, she subtracts 5 by 2 from it. So we have also subtracted, she subtract 5 by 2 from it. So we get x minus 5 by 2. Then she said that the result is multiplied by 8. So the result is x minus 5 by 2. We have multiplied it by 8 since there are two terms in the expression. So we have put a bracket 8 into x minus 5 by 2. And then what is saying, what is being said? That the result is 3 times of the number thought. Whatsoever number thought, the result is 3 times of that. So it is 3x. So the equation is 8 into x minus 5 by 2 is equals to 3x. Now it is a simple equation. You can very easily solve it. I am not going to tell you how you will get the answer as 4. So that you can do. Let us see question number 2. A positive number is 5 times of another number. One number is 5 times of another. So let us say the another number is x. So the first number will be 5x. Got the point or not? Yes. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers become twice the other new number. What are the numbers? Let us see. So let the another number be x. So the number will be 5x. On adding 21 to both, we get x plus 21 and 5x plus 21. So what he is saying that the larger will be twice the smaller. Now children, which is the larger and which is the smaller? Obviously 5x plus 21 is larger and x plus 21 is smaller. So 5x plus 21 is equals to twice of x plus 21. Now solve this equation. As you can do it very easily. We got x as 7 and hence the numbers are 7 and 35. Because the first number is 7 and the other one is 5x, so 5x will be 35. Okay, so these were the first two questions. Now the next two questions are very important, so you will have to understand a bit extra this time. Let us read the question first and then I will explain you. Sum of the digits of a 2-digit number is 9. Means what? Ki if we are having a 2-digit number like 34, so the sum of the digit is 3 plus 4, 7. But here in this case it is 9. When we interchange the digits, अब interchange the digit means 34 we decided earlier on, तो अगर interchange कर देंगे तो क्या हो जाएगा 43. It is found that the new number is greater than the original by 27. नया नंबर पुराने नंबर से 27 ज़्यादा है. What is a 2-digit number? ठीक है. So before we start the question, you will have to understand a few things which are not the part of question. The expansion of a 2-digit number. अगर मान लीजिए हम एक 2-digit नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? 34 को अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म करना होगा तो व्हाट वी विल डू 3 इंटू 10 प्लस 4. जो भी टेंस के प्लेस पर है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वंस वाले प्लेस को, यूनिट वाले प्लेस को ऐसे ही रखते हैं. ठीक है ना. सो द सम ऑफ अ 2-digit नंबर, 2 डिजिट्स, द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. दोनों डिजिट का सम 9 दिया हुआ है. ठीक है. तो इफ़ वन ऑफ देम इज x, दोनों में से एक को हमने मान लिया x, देन द अदर विल बी 9 माइनस एक्स. अब ये 9 माइनस एक्स कैसे आया? मान लीजिए एक x है दूसरा y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9. तो y की वैल्यू क्या हो गई 9 माइनस एक्स. वी कैन नॉट टेक 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल तो ले नहीं सकते x और y, इसलिए हमने दूसरे को भी
फर्स्ट वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये x प्लस वाई इजिकल्स टू 9 और y इजिकल्स टू 9 माइनस एक्स आपको रफ कॉलम में करना है। और ये 34 का 3 इंटू 10 प्लस 4 ये भी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो वन ऑफ देम इज x, अदर ऑफ देम इज 9 माइनस एक्स। सो यू विल हैव टू डिसाइड कि इसमें से आप किसको टेंस प्लेस ले रहे हैं और किसको वंस प्लेस ले रहे हैं। दोनों में से किसी को भी लेने पर क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा। तो मैंने जो है लेट x बी द टेंस प्लेस, मैंने x को टेंस प्लेस लिया है और 9 माइनस एक्स को यूनिट प्लेस लिया है। तो क्वेश्चन 34 के हिसाब से 10 के साथ x का मल्टीप्लाई और 9 माइनस एक्स ऐसे का ऐसे ही ऐड। तो 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स ये हो गया मेरा नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस 9 माइनस एक्स, और उसको मैंने सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 9x प्लस 9। अब वो कह रहा है इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो इंटरचेंजिंग द डिजिट्स में क्या हो गया, 9 माइनस एक्स इज द टेंस प्लेस एंड x इज द यूनिट प्लेस। सो 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस x, it become 90 minus 10x plus x, and then it become 90 minus 9x. 90 minus 9x is the interchange number, 9x plus 9 is the original number. उसने क्या कहा है, interchange number is 27 plus original number. तो 90 minus 9x is equals to 27 plus 9x plus 9. This way it is a simple equation. 27 और 9 को मैंने ऐड कर दिया तो it become 36, and then 36 has gone with 90 and 9x has come with 9x, so 18x is equals to 54 and x is equals to 3. तो अगर x is equals to 3 तो यूनिट प्लेस इज 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस 3 इज 6, टेंस प्लेस इज 3 एंड द नंबर इज 36। कुछ आया समझ? आई एम वेरी श्योर कि आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, बट फॉर योर बेटर एक्सप्लेनेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वंस मोर। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है 34 और उसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म करना है तो टेंस प्लेस के साथ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और वंस प्लेस के साथ 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो दिखाने की ज़रूरत नहीं। 3 इंटू 10 प्लस 4। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, दोनों डिजिट का सम 9 है, तो हमने एक डिजिट मान लिया x, तो दूसरा हो जाएगा 9 माइनस एक्स। वो तो आपको समझ आ ही गया कि कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू हो गई 9 माइनस एक्स। अब x और 9 माइनस एक्स में से एक को मान लिया मैंने टेंस प्लेस, दूसरे को वंस प्लेस, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ मैंने माना x को टेंस प्लेस, 9 माइनस एक्स को यूनिट प्लेस, और उस वजह से 10 के साथ x का मल्टीप्लाई और 9 माइनस एक्स लाइक दैट ओनली, सो आई गॉट 9x प्लस 9। अब उसे क्या करना है, इंटरचेंज द नंबर। इंटरचेंज द नंबर में मैंने 9 माइनस एक्स टेंस प्लेस का हो गया तो 10 से मल्टीप्लाई किया और x लाइक दैट ओनली, सो आई गॉट 90 माइनस 9x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरचेंज नंबर इज 27 प्लस ओरिजिनल नंबर, तो 90 माइनस 9x इज इक्वल्स टू 27 प्लस 9x प्लस 9। इक्वेशन सॉल्व किया, x इज इक्वल्स टू 3, यूनिट प्लेस बिकेम 6, टेंस प्लेस बिकेम 3, नंबर इज 36। होप इट इज़ क्लियर टू यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस ओनली, इसी पर है काफ़ी कुछ। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। एक डिजिट दूसरे का 3 टाइम्स है। फॉर एग्जाम्पल 13, फर्स्ट इज 1 अनदर इज 3, तो 3 इज 3 टाइम्स ऑफ 1। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यू गेट 88। दोनों इंटरचेंज और ओरिजिनल को ऐड करने पर 88 आ रहा है, तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? हियर वी गो, लेट द यूनिट प्लेस बी x। तो इस बार सीधा ही हमने x मान लिया, तो द टेंस प्लेस विल बी 3x, टेंस प्लेस विल बिकम 3x, 3 टाइम्स है क्योंकि, सो द नंबर विल बी ओरिजिनल नंबर 10 इंटू 3x प्लस x एज वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, सो इट बिकम 31x। अब इंटरचेंज किया तो x हो गया टेंस प्लेस और 3x हो गया वंस प्लेस, तो 10 इंटू एक्स प्लस 3x, इट बिकम 13x। On adding both of them, 31x plus 13x is equals to 88, x is equals to 2, so unit place is 2, tens place is 6, hence the answer is 62. So this much is the work I am giving you today, only 4 questions, because 2 of them are very important, that is why we are not going to solve any more questions.
Solve these and complete your homework.